CD number 5. Once, Mr. Borker had a chance to give a talk in the National Environmental Engineering Research Institute, Nagpur. They fixed the dates for the talk and repeatedly changed it. And after a week or so, fixed the talk on 14th March 2005. That is also in the previous day after the closing of office hours by Rita Golabkar. The next day, however, was not suitable, since Mr. Borker was already engaged to give a talk in SISI. After a long tussle, needy officers came to know that Mr. Borker is busy in his talk in Small Industries Service Institute, Nagpur. Luckily, needy officials sent a vehicle to Seminary Hills, where Mr. Borker was busy in a class for the whole day and was moving out of the city the same night. The needy officers contacted the then SISI director, Sri A.S. Madbhavikar, and he informed them that Mr. Borker is engaged in their institution and he is there in the class from the morning. Needy officers contacted Mr. Borker on mobile and conveyed to him that they have fixed his talk at 4:30 p.m. When he entered the room of directors SISI, Mr. Madhvavikar was surprised to see the exact communication he had been told by his deputy, Sri Meshram, that Mr. Borker came out of class and asked the other visiting lecturer to take his class at 3:30 p.m. onward. And Mr. Borker's car moved towards Needy to give his talk. Journalist Borker's motivation talks had been held in central and state government offices, including industries of repute such as Tata's, Birla's, Exide Batteries, Mahindra and Mahindra, and in organizations such as MIDC, Railway, Tarapur Power Station, Civil Defense College, Port Trust, and so on. Mr. Borker was a guest lecturer in National Fire College, Ministry of Home Affairs, Government of India, Government Polytechnic College, Nagpur, and in Small Industries Service Institute, Industries Department, Government of India. Since journalist Sharad Borker's motivation talk audio CDs on Soichiro Honda and Henry Ford, Japan Ka Saga, Mary Saheli, and on Polke Master, loaded the flock of central and state government officers and industrialists at large in Maharashtra and in Goa. Mr. Borker has its journalistic views and criticisms through his talk on government-aided institutions. Following are the observations of Mr. Borker about the National Environmental Engineering Research Institute, Nagpur, and other government organizations about their functioning in Hindi. 1960 के दशक में हमारा हिंदुस्तान ब्रिटिश सरकार के चंगुलों से निकल गुजरा था।
1960 के दशक में ही मैं एक कुछ 5 साल का उम्र का बच्चा हूं। नागपुर शहर में मैं लोहा पुल सीतावर्ली में रहता था। उस जमाने में कोई भी चीज यदि पेपर में आती थी तो उसकी चर्चा आकाशवाणी और पत्र पत्रिका से काफी लोगों के दिल दिमाग में बैठ जाती थी। उसी दशक में नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर में आ बसा। वो जमाना भी काफी इस तरह का था कि हम लोग हमेशा दूसरे देशों के साथ लड़ाई करना या उनसे किस तरह से बचा जाए, इस तरह के संविधान अपने आप के रखते थे। मेरा जहां तक ख्याल है 1960 के दशक में नेहरू जब नागपुर में शुरुआत करने का नेहरू जी का जब संकल्प हुआ, सो मेरे पिताजी मुझे हमेशा कहते थे, देखो प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने यहां पे अपने नागपुर में एक संस्थाएं शुरू करना सोचा है, आपको इसी संस्था में एक दिन रिसर्च करना है। वो जमाना चले गया, वक्त गुजरा और कुछ दिनों के बाद इस संस्था के प्रति मेरा एक दिलचस्पी शुरू होना एक स्वाभाविक बात हो गई। कभी कभार तो नेरी का अर्थ मैं एन से नेहरू लगाता था, क्योंकि बचपन में बताई हुई जो भी बात होती है वो हमारे दिलो दिमाग में घर करके बैठ जाती है। एंड स्टार्ट फॉर नेहरू, दैट वॉज द वर्ड आई रिपीटेड इन माई माइंड ऑफन एंड ऑफन। दिन निकलने के बाद मेरा इस संस्था की तरफ देखने का एक दृष्टिकोण ही अलग हो गया। उस दशक में हम लोग घर के बाहर तो उतना नहीं निकल पाते थे, या हमारे जो बड़े भाई लोग थे, रिश्तेदार थे, वे भी हमें आज के बच्चों के समान कोई ट्रिप पे लेके जाने की बात उस जमाने में बिल्कुल ही नहीं थी। यदि आपको कहीं जाना है वो भी स्कूल के किसी कार्यक्रम में या फिर किसी शादी में, तभी आप अपने बुजुर्गों के साथ घर से निकल पड़ते थे। 1972 के जमाने में मैं बाड़ी से लेके अजनी, दैट इज ऑन वर्धा रोड, हमारे प्लॉट पे शिफ्ट हो गए। जब मैं पहली बार वो रोड से गया तो नेशनल एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के गेट के सामने एक 5 मिनट के लिए स्तब्ध खड़ा हो गया और मेरे पिताजी के दिए हुए शब्द मेरे याद आने लगे। इस संस्था के बारे में काफी बार मैंने काफी अच्छा ही सुनी थी। एक बार तो किसी व्यक्ति ने हमें बताया था कि चाइना का कोई व्यक्ति, चाइना का कोई फौजी हमारे नौजवान ने पकड़ा और उसको बंदी बना के हमारे जेल में रखा। बाद में बताया गया कि जो व्यक्ति पकड़ा गया उसी व्यक्ति ने बाद में एक प्लेन का अनुसंधान लगाया और वो अभी इंडिया का स्वयं का प्लेन बना है। हमारी उस बुद्धि में हमें ऐसा लगा कि नेरी के सामने ही जेल है, शायद हो सकता है जेल में उस आदमी को रखा होगा और उसके सामने में नेरी है, उसको वहां रिसर्च करने के लिए बताया होगा। लेकिन किसी पराये देश का फौजी बंदी, वो बंदिश तो आदमी
अपने देश में इस तरह का काम करेगा, ऐसा हमें आज दिखाई नहीं देता। लेकिन वो बचपना ही ऐसा था कि किसी ने बता हुई बात हमारे ध्यान में घर करके रह जाती थी। और इसी तरह मेरा एनवायरमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट नेरी के बारे में एक दिलचस्पी लेना